Very good morning and welcome back, students. So now we have completed our traditional accounting, which have three accounts: personal, real, and nominal, which were very important. And those who are new students, please go through the previous videos and study each and every video very carefully. There are golden rules of accountancy in the previous 5 videos. Just try to understand it. If you have any problem, you can ask me in the query group. I will surely answer you. Okay. Now today we will, first of all, we are going to explain the homework which was given to you. First was electricity expenses paid rupees 5,000. I told you in nominal account expenses are debited. So electricity expenses account will be debited because it is expense. And another account will be cash. As I told you, when there is word paid, it means we have paid cash. Never open any account with the name paid. Some people do paid account. There is nothing like paid account. Another account is cash account, which is real account, and it will be credited because cash is going out. In real account, rule is debit what comes in, credit what goes out. So if we are paying electricity bill, then it is an expense, it will be debited, and cash will go out, it will be credited. Okay. Second was goods purchased from Ram, rupees 10,000. So I have told you, whenever goods are purchased, purchase account will be debited because it is an expense. And Ram is personal account. Ram will be credited because Ram is giver. Okay. So why I credited Ram instead of cash? I have already told you, whenever we purchase goods or sell goods to some person, and in the question it is not written that cash is received or paid, we have to assume that it is क्रेडिट ट्रांजेक्शन. हमने उससे उधार खरीदा है. ठीक है. और कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ भी नहीं है वर्ड पेड और रिसीव्ड, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं ना. वी हैव पेड अमाउंट और रिसीव्ड अमाउंट. सो वी हैव टू एज्यूम दैट इट इज व्हाट, इट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन. थर्ड इज वेजेस पेड टू रहीम, रुपीज 16,000. In this example, first account will be wages. It will be debited because it is expensive. अब कुछ बच्चों ने इसमें रहीम लिखा है. रहीम नहीं आएगा इसमें रहीम चाचा नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है wages paid. When it is written wages paid, it means we have given cash. So cash account will be credited. एंड रूल क्या है? गोज आउट. एक्सपेंसेस क्या होते हैं? नॉमिनल. फोर्थ, रिपेयर एक्सपेंसेस पेड. अगेन पेड इज रिटन, एंड इन एक्सपेंसेस इफ पेड इज आल्सो नॉट रिटन, यू हैव टू एज्यूम दैट इट इज पेड. जब तक ये नहीं लिखा हुआ कि एक्सपेंस ड्यू है, तब तक अपन उसको क्या मानेंगे? पेड ही मानेंगे. अगर ड्यू होता है तो क्या लिखते हैं? अपन ने पढ़ा था पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में कि जब भी कोई एक्सपेंस ड्यू होता है, हमने पे नहीं करा, तो उसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. ठीक है. उसकी एंट्री में आपको बाद में बताऊंगा. अभी तो क्या लिखा हुआ है? रिपेयर एक्सपेंसेस पेड रुपीज 14,000. सो एंट्री विल बी रिपेयर अकाउंट. डेबिट होगा क्योंकि वो नॉमिनल है और वो हमारा एक्सपेंस है, बिजनेस का एक्सपेंस है वो. ठीक है.
और दूसरा आएगा इसमें वही कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है पेड। एंड फिफ्थ पॉइंट वाज गुड्स सोल्ड टू राम, चेक रिसीव्ड। ये भी कुछ बच्चों ने गलत किया है। मैंने आपको कई बार बताया कि एक तो गुड्स सोल्ड के लिए सेल्स आता है, ये अपनी इनकम होती है, ये क्रेडिट होगा क्योंकि ये इनकम है। और इसमें दूसरा अकाउंट आएगा बैंक। एज यू आस्क्ड इन क्वेरी ग्रुप आल्सो कि चेक को अपन रियल अकाउंट क्यों नहीं मानते। मैंने आपको बताया था कि चेक को अपन ऐसा मानते हैं कि वो अपन ने बैंक में जमा करा दिया, तो अपन बैंक को रिसीवर मान लेते हैं या पेयर मान लेते हैं, जैसा भी पॉइंट है। मगर क्वेश्चन में अपने को स्पेशली ऐसी कोई हिंट मिले कि अभी तक चेक जमा नहीं हुआ, तब अपन उसको चेक मानेंगे, तब अपन उसको रियल अकाउंट मानेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, चेक रिसीव करा है, तो हम ये मानेंगे कि वो चेक बैंक में जमा हो चुका है। सो बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि वो रियल अकाउंट है, एंड इट इज कमिंग इन, कम्स इन। These were the examples. Today we will study very important part that is journal. And I've told you in the beginning that journal is a book in which we record the transactions for the first time. That I told you when we were studying steps involved in the process of accounting. What were the steps? Recording, classifying, summarizing, analyzing and interpretation, then communicating the, summarizing के बाद analyzing interpretation, then communicating the result. रिकॉर्डिंग वाला पार्ट में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले ट्रांजेक्शन जिस बुक में रिकॉर्ड होते हैं उसको बोलते हैं हम जर्नल। एंड जर्नल मैंने आपको बताया था कि 8 टाइप्स ऑफ जर्नल्स आर देयर विच यू विल स्टडी लेटर। हम आज पढ़ेंगे जर्नल प्रॉपर, जर्नल बुक जो कि अकाउंट्स का बेस है। हम उसमें सीखेंगे कि हम कैसे डेबिट करते हैं और कैसे क्रेडिट करते हैं, ठीक है। सो राइट डाउन इन योर नोटबुक टॉपिक जर्नल। जर्नल स्पेलिंग इज somewhat different from the general of the military. This is not that general, this is journal. What? Journal. Journal book. Its spelling is Journal. What is the format of journal? Its format is like this. You have to use your complete notebook. For example, this is your notebook. From the right side, start preparing this much column. This will be credit and this will be debit. Okay? And about this, we have to write amount. Now come here, make a small column which is known as JF, not JF, it is LF. In journal we have to write LF. And DR full form I have told you, debit record. CR full form is credit record. And in the left side you have to write date column, and this one is particulars. No need to write it horizontally, you have to make it straight only. Okay, are you getting me? Portrait side में ही बनाना है आपको, लैंडस्केप यानी कि इसको विड्थ वाइज करने की जरूरत नहीं है, सीधा बनाना है आपको। मैंने थोड़ा लंबा बनाया है, आप अपनी कॉपी की लेंथ के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। ये पूरा उसमें आ जाना चाहिए और पूरा पेज कवर होना चाहिए।
मार्जिन को आप छोड़ दीजिए चाहे से, मार्जिन को छोड़ के बाकी का पूरा पेज आपको कवर करना है। ऐसे पेज में स्पेस नहीं छोड़ना आपको, नो नीड ऑफ फ्री स्पेस हियर, यू हैव टू कवर होल द पेज। नाउ note it down, this is the format of journal in which we do journal entries. Okay, you have done. Now write down journal entries. The way of recording a transaction in the journal book is called journal entry. Okay, you got it? हम जिस तरह से जर्नल में ट्रांजेक्शन को लिखते हैं उसको जर्नल एंट्री कहते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता रहा हूं कि कैसे करते हैं, और मैं उसी एग्जांपल को ले रहा हूं जो अभी हमने सॉल्व किया है, जो मैंने आपको कल होमवर्क में दिया था। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड ₹5000 है सबके पास, उसको निकाल लीजिए आप। उसको हम जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करेंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। डेट्स में इमेजिनरी कुछ भी ले लूंगा अभी, जैसे फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड, एज वी हैव स्टडीड, वी नो दैट वी हैव टू डेबिट द इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, सो वी विल राइट डाउन हियर इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट। Now you have to make it another journal for it. First journal was your format, let it be empty. Second, you have written journal entries. Now you have to again make a format and you have to do the journal entries in that from the homework which was given to you in the previous video. The first transaction I am doing is electricity expenses paid ₹5000. Students, those who don't have it in the copy may write down the first transaction in a separate page, that is electricity expenses paid ₹5000। उसको हम कैसे जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं ये हम अब सीखने जा रहे हैं। तो मैंने क्या करा, जिसको डेबिट करना है उसको पहले लिखना है। हमें इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट करना है ना, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। ओके, आप चाहो तो एक्सपेंसेस लिख भी सकते हो, चाहो तो नहीं भी लिख सकते हैं, ओनली इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट भी काफी है। ऐसे आपको शॉर्ट में A/C लिखना है, दिस इज द वे, आपको ऐसे ही लिखना है हमेशा। और DR को भी हमेशा शॉर्ट में ही लिखना है, आपको पूरा नहीं लिखना, DR ही लिखना है। और ये इस तरीके से ही लिखा जाएगा, ये इस लाइन के पास में ही आएगा और बिल्कुल इसकी सीध में आएगा। अंडरस्टैंड? अमाउंट इज 5000, तो ये डेबिट है तो इसका अमाउंट डेबिट में लिख देंगे 5000। अब हमें क्रेडिट किसको करना है, कैश अकाउंट को, तो वो नीचे आएगा, यहां थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे, यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट। जिसको क्रेडिट करना है उसके आगे टू लगाते हैं, इसके आगे CR VR कुछ भी नहीं लिखते। अंडरस्टैंड? अब इसका जो अमाउंट है वो CR वाले कॉलम में लिख देंगे 5000। ओके, इट्स वेरी सिंपल। नाउ इसके नीचे आता है नरेशन। नरेशन का मतलब है कि अपन को क्वेश्चन में जो कुछ भी लिखी हुई लैंग्वेज उसको इसमें लिखना है। नरेशन हमेशा स्टार्ट करते हैं बीइंग से। बीइंग, जो भी हमने इसमें करा उसको लिखना है लैंग्वेज बना के। बीइंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड। नरेशन को चाहो जितना बड़ा भी कर सकते हो, चाहो जितना छोटा भी कर सकते हो, उसको जितना ब्रीफ में रखें उतना अच्छा है। हमने इस ट्रांजेक्शन में क्या करा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा है ना, तो उसको लिखना है सिर्फ बीइंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड। दिस इज द वे वी डू जर्नल एंट्री। ये कलेक्टिवली क्या कहलाती है, जर्नल एंट्री। इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट को डेबिट करना था उसको ऊपर लिख दिया, कैश को क्रेडिट करना था उसको नीचे लिख दिया, टू लगा दिया उसके आगे। और अमाउंट कैसे आएगा, डेबिट का अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में। होप यू आर गेटिंग। नाउ नेक्स्ट
is goods purchased from Ram 10,000 and I have already told you कि परचेज अकाउंट डेबिट होगा और राम अकाउंट क्रेडिट होगा। आप लोग करने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग सेकंड पॉइंट करने की कोशिश करिए, उसके बाद देखिएगा कि उसका आंसर आपका सही है या नहीं। मैं कर रहा हूं अब। तो हमें परचेज अकाउंट को डेबिट करना है, इसलिए हम लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट। और राम इज गिवर, तो राम को क्रेडिट करना है तो हम लिखेंगे टू राम और इसका अमाउंट है 10,000। नरेशन क्या आएगा? बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम। ओके, इस पॉइंट में हम अब दो बातें सीखेंगे। पहली बात कि मैंने देखो राम के आगे अकाउंट नहीं लगाया, तो जब भी किसी पर्सनल अकाउंट का नाम होगा, इंडिविजुअल का नाम, राम, श्याम, मोहन, सोहन, रहीम, करीम, जैनब, जो कुछ भी नाम आएंगे उनके आगे हमें अकाउंट नहीं लगाना, उनको हमको डायरेक्ट ऐसे ही लिखना है टू राम। क्लियर? दूसरी बात, ये जो एलएफ वाला कॉलम है इसकी फुल फॉर्म है लेडजर फोलियो। लेडजर मतलब जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं ना, मैंने आपको बताया था सबका अलग अकाउंट बनेगा, इसके बाद पढ़ेंगे हम कुछ दिनों बाद। इसको बोलते हैं लेडजर। और फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर। तो हमने पढ़ा था ना स्टेप्स की, सबसे पहले रिकॉर्डिंग होती है, फिर क्लासिफाइंग होती है। पहले ट्रांजेक्शन एक साथ रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर इनको अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो उन अकाउंट्स का पेज नंबर यहाँ पर आता है। प्रैक्टिकली ये बहुत काम की चीज है, मगर अभी बुक में अपन इसको कुछ भी नहीं लिख सकते, इसलिए भी अपन इसको खाली छोड़ देते हैं। ठीक है? आर यू गेटिंग? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू। मेरा ये पेज खत्म हो गया, आपका पेज जब खत्म होगा जवाब कर लेना। जब भी पेज अपना खत्म हो जाएगा तो हम टोटल लगाएंगे, टोटल कैरीड फॉरवर्ड, सीएफ। हो सकता है किसी का पेज खत्म नहीं हो, मगर समझ लो जब भी हमारा पेज खत्म हो जाता है और हमें जर्नल को कंटिन्यू करना है तो हम नीचे की तरफ टोटल लगाते हैं, टोटल कैरीड फॉरवर्ड, और फिर हम इसका टोटल कर देते हैं 15,000। हमेशा टोटल सेम ही आता है जर्नल का। ठीक है? नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे वाला क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम ये जो बैलेंस हमने करा, पेज खत्म हो गया, अगले पेज पर हम लिखेंगे टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड। नीचे तो आएगा कैरीड फॉरवर्ड, सीएफ शॉर्ट में लिखना है, फुल फॉर्म नहीं लिखनी। ऊपर भी शॉर्ट में आएगा टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड। ओके, अब ये जो टोटल आए हैं इनको हम यहाँ लिख देंगे 15,000 15,000। ये एक ही लाइन में आएगा टोटल, तो एंट्री ऊपर नीचे आती है मगर टोटल एक ही लाइन में आएगा। थर्ड है वेजेस पेड टू रहीम। कैसे करेंगे? वेजेस अकाउंट डेबिट टू रहीम और इसका अमाउंट है 16,000। being wages paid. Okay, now I hope you are understanding. Moving forward, point number 4 we are doing
Fourth is repair account debit to cash account. Amount is 14,000. Narration being repair expenses paid. So next is goods sold to Ram, check received. We have to make entry bank account debit to sales account, and amount was 15,000. Now at last, narration you have to write being goods sold and check received. I am going to tell you, when the question is and, you have to make grand total. Here you have to write, I am having little space, you have to write in a line grand total, and you have to total including the brought forward. Okay, brought forward balance will be included. 15 plus 16 31, 31 plus 14 45, 45 plus 15 60,000 is the grand total. I hope you got it. When page is end and question is not complete, you have to write total carried forward. In the next page, you have to write total brought forward. And I have told you the way of doing the journal entry. Debit will be on the upper side, credit on the lower side. No CR will be written, only 2 will be written here. And you have to take space also here. LF में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे. डेबिट वाला अमाउंट डेबिट के सामने लिखेंगे, क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट के सामने लिखेंगे. ठीक है, और फिर टोटल हम करेंगे जिसको बोलेंगे ग्रैंड टोटल. आई होप आपको समझ में आया कैसे करते हैं. एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी प्रोप्राइटर यानी कि बिजनेस का ऑनर बिजनेस में कैश लगाता है तो उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आ रहा है हमारे पास. और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है क्योंकि प्रोप्राइटर के अकाउंट को बोलते हैं कैपिटल अकाउंट. आप नोट कर लीजिए. So this is your homework for today, which is question number 6. This is at page number 6.17 in the new book. Question number 6, you may also write down from the video. In this question, you have to prepare journal as we studied today. Point number 1 is Manu started business with cash. Manu is the owner of business, so he is introducing cash, so its entry will be cash account debit to capital account, as I have told you. Okay, have a good day. Thank you.